Good evening, everyone. I am Dr. Nupur Gupta, gynecologist and obstetrician practicing at Well Women Clinic, as well as I work as a director in the Department of Obstetrics and Gynecology at Fortis Memorial Research Institute, Gurugram. Today, we are going to talk about a very important topic, which is breastfeeding. We all know that Breastfeeding Week is celebrated from 1st to 7th August every year, and breast milk works like golden drops to newborn, which is a mother's gift, and this is for their healthier future. So, as obstetricians, we need to promote, protect, and support breastfeeding practices, and it has known benefits for both mother and newborn. So let us talk about the benefits, the facts, and also bust the myths which are related to breastfeeding. To discuss more about this topic, we have with us Dr. Manjari Deshpande. Welcome, Hello Dr. everyone. Manjari. Thank you Nupur ma'am for calling me on this live session. Hello everyone. So, Dr. Manjari is a certified childbirth educator and a breastfeeding or lactation consultant. Since last 5 to 6 years, she has been working with parents to guide them about pregnancy care, birth preparation, exercise, post-delivery care, as well as breastfeeding. More than 200 mothers have benefited from her till date. She is also best on educating moms and fathers about labor and delivery. So, welcome, Dr. Manjari. Thank you ma'am. So, Dr. Manjari, when we talk about myths which are related to breastfeeding, the first and foremost is that most of the mothers think that breastfeeding hurts. So, how true is this? Breastfeeding hurts. The fact is that if the baby is not latched correctly on the breast, then it will definitely hurt for the mother. बिकॉज क्या होता है जब भी आप बेबी को फीड कराते हैं, अगर आपका लैच जो है वो निपल पे है, तो बेबी का जो टंग की मूवमेंट होती है लैच करते वक्त, तो वो स्लाइडिंग मूवमेंट जो है वो एग्जैक्टली निपल के नीचे होने लगती है, और आपका निपल जो है वो टंग और बेबी का हार्ट पैलेट में फंस जाता है, और उसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से फिर आपका निपल इंजुरीज बढ़ जाती हैं, और फिर आपको निपल पेन शुरू हो जाता है, और आपको लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत ही हर्टफुल है। तो अगर आप इस चीज को सुधारते हैं, अगर आप बेबी को कैसे फीड करवाना है, उसकी लैच कितनी करेक्ट होनी चाहिए, अगर ये पहले से समझ लेते हैं, तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो हर्टफुल नहीं होगा, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को। तो जब भी आप सेशन लेंगे बिफोर डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी भी अगर आप गाइडेंस ले लेते हैं, तो करेक्ट लैच पे ध्यान दीजिएगा, बेबी का ब्रेस्ट पे कैसे होना, उसका टेक्निक कैसे होना चाहिए सकिंग का, वो लैच कैसे होनी चाहिए, वो सब कुछ अगर आप समझ लेंगे, तो आप डेफिनेटली बिना कोई पेन के या बिना किसी प्रॉब्लम के बेबी को आराम से फीड करा सकती है। सो ब्रेस्ट फीड कभी भी हर्टफुल नहीं होगा अगर आप बेबी को सही लैच में फीड कराते हैं तो। So, thank you, Dr. Manjari. Means right latching is very important. But yes, Yes. in the initial few days of giving birth, there are times where you can feel discomfort, you can feel uncomfortable, और कभी कभी pain या hurt का reason can also be sometimes infection in the nipple or areola, या फिर Yes. दूसरा कॉमन या सबसे कॉमन रीजन जो है वो पुअर लैचिंग है. दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू hold the baby properly, and this leads to hurting the breasts. Sometimes what happens is that there are lot of restrictions post delivery regarding what to eat, what not to eat, and most of the times, whether it is normal delivery or a cesarean delivery, mothers land up eating only bland food. So how true is this? द फैक्ट इज दैट सोसाइटी में हमारी अभी भी ट्रेडिशनल बिलीव्स है कि अगर ये खाएंगे तो बेबी को गैस हो जाएगी, या इस खाने की वजह से बेबी को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, या मदर का जो है ब्रेस्ट मिल्क जो है उस पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो ये डिफरेंट जो है वो नॉर्म्स अभी भी हमारी सोसाइटी में है। मगर अगर हम देखें, अगर मदर की हेल्थ को अगर हमें रिस्टोर करना है, तो उसका जो डाइट है वो अगेन वेल बैलेंस्ड नरिश्ड होना चाहिए। तो एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस डाइट में आपको नहीं रखनी है, आप प्रॉपर वैरायटीज ऑफ फूड ले सकते हैं। बट हाँ, कुछ केसेस में आपके कुछ फूड आइटम्स की वजह से बेबी को एलर्जीज हो सकती है, जिसकी वजह से को बेबी को गैस होना, या बेबी का क्रैंकी फसीनेस होना, या उसकी स्टूल में ब्लड आना, या डायपर में आपको ब्लड दिख देना।
अगर इस तरह से कोई एलर्जिक सिम्पटम्स आपको दिखाई देता है तो डेफिनेटली वो आप फूड आइटम को एलिमिनेट कर सकते हैं। बट अनलेस एंड अनटिल आपको और बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तो आपको एज़ सच कोई डाइट की रिस्ट्रिक्शंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो हेल्थ है वो मेंटेन करने के लिए एक वेल बैलेंस्ड डाइट, वैराइटीज़ ऑफ फूड इंक्लूड करके ज़रूर ले सकते हैं। दूसरा, आपने प्रेगनेंसी में जो खाया था वो प्लासेंटा की प्लासेंटा से बेबी को चला गया है। तो अगेन उस टाइम पे एक नरिशिंग सोर्स आप खुद ही थे। तो आफ्टर डिलीवरी जो है वो बेबी आपका ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है, तो अगेन आप एक नरिशिंग सोर्स हो। तो जो आपने प्रेगनेंसी में खाया है, तो वही आपको फिर बाद में रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो वो एज़ सच कोई ब्लैंड फूड खाना या रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप बेबी को या आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होते देखते हैं या कोई एलर्जिक सिम्पटम्स देखते हैं, तभी आप उस फूड आइटम को एलिमिनेट कर लीजिएगा। अदरवाइज़ हाँ, आप थैंक यू डॉक्टर ज़रूरी नहीं मंजरी। है। हाँ, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ईट अ वेराइटी ऑफ फूड एंड योर डाइट इज़ बैलेंस्ड। मतलब यस, चाहे वो स्पाइसी हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो, बट दीज आर द सेम टेस्ट्स दैट योर चाइल्ड विल हैव। इफ़ यू वांट योर चाइल्ड टू ग्रो अप कि वो सिर्फ ब्लैंड डाइट खाए और वो अच्छा खाना ना खाए, or you want to develop all kind of tastes, will depend what you are eating during pregnancy and after delivery both. So there is no need to put so many restrictions. What you need to avoid is only junk food जो आप पहले भी करते थे, या oily spicy food and so on. So Dr. Manjari, many a times when mothers are sick, either due to fever or due to whatever may be the reason, and they are advised to stop free breastfeeding by family members. So इसमें कितना सही है ये चीज? अगर आपको कोई इलनेस है या फ्लू लाइक सिम्पटम्स वगैरह है, तो जब तक आपको उसके सिम्पटम्स पता चल जाता है, तब तक ऑलरेडी बेबी आपके कांटेक्ट में है, तो उसको तो वो इन्फेक्शन हो गई। बट अगर आपकी बॉडी जब एंटीबॉडीज डेवलप करती है उसकी इलनेस के विरुद्ध, तो जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं, तो वही एंटीबॉडीज बेबी को भी मिल जाती है, तो बेबी को भी वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो अगर एज सच आपको कोई फ्लू लाइक सिम्पटम्स है या कोई इलनेस है, तो बेबी को रिस्ट्रिक्ट करने की या ब्रेस्ट फीडिंग को आपको स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, जहाँ हम फिर देखते हैं कि बेबी को आगे ब्रेस्ट फीड करे या ना करे। तो वो फिर आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को या आपके लैक्टेशन कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करके उसको रूल आउट कर सकते हैं। बट इन जनरल एज सच बेबी को ब्रेस्ट मिल्क ना देने की कोई ज़रूरत नहीं है या ब्रेस्ट मिल्क रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो डॉक्टर मंजरी आपने सही कहा कि इवन इफ देर इज कोल्ड है या फ्लू है या कोई भी रीजन से फीवर है, चाहे मलेरिया है या डेंगू है या कोई कॉमन कोल्ड है, सो यू थिंक दैट बेबी माइट एक्वायर दैट कॉमन कोल्ड फ्रॉम यू। पर ऐसा सच नहीं है, बिकॉज लॉट ऑफ एंटीबॉडीज दे ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू द बेबी और वो ही उनको प्रोटेक्ट करती है। तो यदि आप हाथ ठीक से धोएं, आप कॉफ या स्नीज बच्चे के ऊपर ना करें, या ऐसे टाइम में मास्क पहन लें, सो दैट विल बी गुड इनफ। बट एट द सेम टाइम getting antibodies will keep boosting the immunity of the newborn. बेबी तो डॉक्टर मंजरी, बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है अगर मदर करती है तो प्रेगनेंसी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है कि नहीं। दैट मीन्स ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड व्हेन दे आर ब्रेस्ट फीडिंग, how true is this that they need to use any contraceptive or no contraceptive? What do you want to say about this? अगर आप बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, दैट मीन्स आपने एक बार भी बेबी को टॉप फीड नहीं दे रही या फॉर्मूला फीड नहीं दे रही। जितनी बार भी बेबी दिन में फीड कर रहा है, वो कंप्लीटली आपके ब्रेस्ट मिल्क पे है। तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होती है वो डेफिनेटली आपके ओव्यूलेशन को सप्रेस कर देगी और आपको एक नेचुरली कॉन्ट्रासेप्शन मिल जाएगा, या आपकी प्रेगनेंसी स्पेस करने के आपको वो नेचुरली प्रोटेक्शन मिल जाएगा। बट अगर आप एक बार भी फॉर्मूला देते हैं दिन में और आपका वो पैटर्न वैसे ही चलता जाता है, तो वो आपके लिए पूरा कॉन्ट्रासेप्शन का काम नहीं करेगा। आपका ओव्यूलेशन का चांस बढ़ जाएगा और आप कंसीव हो सकते हैं। सो अगर आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करें तो भी आपका 100%
कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि हाँ, आपका एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का काम करेगा। बट अगर इस तरह से जैसे मैंने अभी बोला था कि अगर एक बार भी आप कट ऑफ फीड दे रहे हैं दिन में, तो वो आपके लिए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का काम नहीं करेगा। फिर आपको अदर ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे, इसलिए फिर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको स्पेस रखना है प्रेगनेंसीज में या नेक्स्ट प्रेगनेंसी आपको अवॉइड करनी है तो। So very rightly put that breastfeeding is also for a newborn is a blessing and a joy to see your baby suckle on this unconditional love which comes in the form of breast milk. So it is bond. It creates not only bonding but is a beautiful expression between both mother and baby. बेबी Uh, so as a natural contraceptive, breastfeeding uh, a baby helps to prevent pregnancy during intercourse. But very और इसी मेथड को हम कहते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड, अमेनोरिया जो कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे भी एक्ट करता है. So if you are on exclusive night feeds or you are exclusive feed for the entire 24 hours or up to 6 weeks or 6 months postpartum, you don't need to use anything because your ovulation will not resume or will not come back to normal so fast. But जैसा डॉक्टर मंजरी ने बताया कि इन बिटवीन इफ यू आर यूजिंग समथिंग एल्स और यू आर गिविंग टॉप फीडिंग और यू आर मिक्स फीडिंग, देन नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जैसे ब्रेस्ट फीडिंग विल नॉट बी एबल टू एक्ट. अदरवाइज जो इसकी एफिकेसी है ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑलमोस्ट 98 to 99%. परसेंट। So it is very important कि नाइट फीड हो एंड सो दैट नेक्स्ट टाइम का ओव्यूलेशन रिज्यूम ना हो. Naturally also for 6 weeks you will not conceive spontaneously, but between 6 weeks to 6 months it is very important that you need to understand that when you need to use protection ताकि unwanted pregnancy ना हो. तो डॉक्टर मंजरी बहुत बार फैमिली मेंबर्स भी और जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है वो खुद भी दे फील दैट देयर ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन इज नॉट इनफ. So most of the times what happens is that they have this feeling that there is inadequate milk production and they start giving top feeds. So what should they do in such an instance? And is it really true that breast milk is less for babies? मेजॉरिटी अगर फैक्ट हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द मदर्स आर एबल टू ब्रेस्ट फीड द बेबी, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड द बेबीज. बट अगर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ मिल्क फॉर द बेबी, तो रीजन आप ढूंढना शुरू कर दीजिए. जैसे कई बार अगर बेबी फ्रिक्वेंटली उठता है तो मदर को लगता है कि ये बार बार उठ रहा है और तो शायद इसका पेट नहीं भर रहा है. बट उसके बार बार उठने के भी अलग अलग रीजंस हो सकते हैं. जैसे सपोज आपने देखा होगा कि अगर हम मदर को सेपरेट करते हैं बेबी से तो वो बेबी फिर काम एंड कंफर्टेबल नहीं होगा, या डिफरेंट रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बेबी बार बार उठता है और आपको लगता है कि वो इनफ नहीं है मिल्क क्योंकि बेबी शायद पूरा उसका पेट नहीं भर रहा है. बट अगर आप रीजंस को ढूंढेंगे या अपने कंसल्टेंट के साथ, जो लैक्टेशन कंसल्टेंट है उनके साथ अगर आप कंसल्ट करते हैं तो फिर आप उसको रीजन को ढूंढ लेंगे, फिर वो आपको हेल्प कर देंगे कि किस क्यों से आपको लग रहा है. और फिर उसके साथ साथ अगर आप बेबी का वेट गेन ट्रैक करते हैं, वो कितनी बार यूरिन पास कर रहा है, वो कितना कंफर्टेबल है, काम है, कितनी देर तक वो फीड कर रहा है, अगर ये सारा लॉग अगर हम ट्रैक करते हैं तो डेफिनेटली हमें पता चल जाएगा कि बेबी जो है वो इनफ मिल्क ले रहा है. और जो आपको डाउट्स है उसको क्लियर करने में आपके लैक्टेशन कंसल्टेंट्स आपको हेल्प कर देंगे. सो ऐसा नहीं है कि आप मिल्क जो है वो बेबी के लिए सफिशिएंट नहीं है, बट कुछ कंडीशंस हैं जहां आप बेबी को फीड कराते हैं तो आपका मिल्क प्रोडक्शन जो है वह कई बार उतना नहीं होता है जितनी बेबी की रिक्वायरमेंट है. सपोज अगर सर्जरी हुई है या कोई और रीजन से या मदर ज्यादा स्ट्रेस में है तो कई बार वो जो है वो मिल्क प्रोडक्शन को थोड़ा कम कर देता है और वो बेबी के लिए मिल्क जो है उतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं हो पाता. बट ये बहुत ही लेस कंडीशंस में हो जाता है. बट मेजोरिटी ऑफ द मदर्स जो है वो बेबी को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो मिल्क प्रोडक्शन कर लेती. इनफैक्ट अगर आप ट्वीन मदर है या ट्रिपलेट मदर है तो वो मदर जो है वो उतना बेबी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए सफिशिएंट हो जाती हैं. तो अगर आप ट्विन भी है आपकी बेबी या ट्रिपलेट भी है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका मिल्क प्रोडक्शन उतना बनेगा जितनी बेबी की रिक्वायरमेंट है.
Yeah, so Dr. Manjari, what is Dr. Manjari trying to say is that you don't need to feel that you are a bad mom and that your milk production is not sufficient. What is important is to keep feeding every 2 to 3 hours, and accordingly, the milk will be produced more. So, the more you feed your baby, the The more more milk, milk you will the make. more milk, and the hormones will work in a similar way. So, and don't think that your baby is getting up again and again, so that means the baby is hungry. There are many reasons for babies to get up. It can be mild pain in abdomen, it can be when they are passing urine or they want to pass stool, or maybe they are uncomfortable during sleeping time. But on an average, every 2 to 3 hours is good enough. Before that, usually they will not ask for more milk. So, Dr. Manjari, sometimes we think that formula feeding or top feeding is better than breastfeeding because babies feel more satiety और उनको लगता है कि इनका पेट इसी से भरेगा. तो क्या फॉर्मूला फीड देना चाहिए? फैक्ट ये है कि फार्मूला फीडिंग जो है वो अपना डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है फार्मूला के, और जो ब्रेस्ट फीडिंग है अगर हम देखें तो वो यूनिक स्पेसिफिक है और स्पेसिस स्पेसिफिक है। दैट मीन्स एवरी मदर अपना बेबी जो रिक्वायरमेंट है उसी कंपोजिशन में उसकी उसकी रिक्वायरमेंट में उतना ही न्यूट्रिशंस मिल बनाती है जो एक बेबी के लिए ज़रूरी है। अगर हम दो मदर्स में देखें, अगर एक फुल टर्म मदर है और एक प्रीटर्म मदर है, तो प्रीटर्म मदर के मिल्क का कंपोजिशन है वो डिफरेंट होगा एक फुल टर्म मदर के मिल्क कंपोजिशन से, बिकॉज वो जो मिल्क है वो अपनी बेबी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिक्रेट किया हुआ मिल्क है, या जो मदर सिक्रेट कर रही है वो बेबी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर रही है। तो दैट मीन्स अगर आप सोचते हैं कि फॉर्मूला देने से मेरा बेबी जो है वो ज़्यादा देर तक सोएगा, तो ये इस वजह से होता है क्योंकि डाइजेशन के लिए फॉर्मूला ज़्यादा टाइम लेगा, और फिर वो अगर आप बॉटल से दे रहे हैं या किसी और एक्सरे से दे रहे हैं तो क्या होगा, बेबी कई बार ज़्यादा फीड भी ले लेता है और उसकी वजह से डाइजेशन के लिए भी टाइम लगेगा और बेबी काफ़ी देर तक सोता रहेगा। बट अगर आप डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, या सपोज अगर आप किसी स्पून से या इससे भी करा रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को, तो वो जिसकी उतनी रिक्वायरमेंट है उतने ही में वो बेबी ले लेगा फीडिंग जो है। और जो ब्रेस्ट मिल्क है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए हमें वो फ्रिक्वेंटली देना पड़ता है। तो अगेन बेबी अपने टाइम के हिसाब से उठेगा, जो हम कहते हैं कि 2 to 3 आवर्स में बेबी उठेगा, फीड ले लेगा, तो थोड़ी देर खेलेगा, फिर आराम से सो जाएगा और फिर अपने हिसाब से उठेगा फीडिंग के लिए। तो वो बेबी के लिए उसकी उतनी रिक्वायरमेंट जो है उतना में वो ले लेगा, वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा और वो बेबी को ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम फार्मूला देखें तो फार्मूला के डिसएडवांटेज अगर हम सोचते हैं या देखते हैं, तो जो बेबी फार्मूला फीड होते हैं उनमें ओबेसिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनका आईक्यू भी कम होता है। आगे जाके अगर हम देखेंगे तो उन बेबीज़ में डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं एडल्टहुड में, और कार्डियक डिसीज़ या हार्ट डिसीज़ेस की भी प्रॉब्लम्स उनमें ज़्यादा होती हैं। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ बेस्ट फॉर द बेबी। सो अगर आप सोचते हैं कि ब्रेस्ट फार्मूला देने से मेरा बेबी ज़्यादा देर तक सोएगा या उसकी अच्छी ग्रोथ होगी, तो वो नहीं है। आपका बेबी ब्रेस्ट फीड पे ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। So, Dr. Manjari very rightly put that breastfeeding is the ideal nutrition for your newborn. चाहे वो quantity of proteins हो, चाहे fats हो, चाहे उसमें vitamins हो, lactose हो, या protection from various infections जो कि antibodies की वजह से होता है. And very important that it is easily digestible as compared to the formula feed. फॉर्मूला। हाँ, तो रिस्क ऑफ ईयर इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वो सब भी कम हो जाते हैं. एंड यू ऑल्सो गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बॉन्ड विद योर बेबी थ्रू स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, जिसको हम कहते यस। हैं कैंगरू केयर. एंड it has also benefited mother in so many ways after delivery, not यस। only in losing weight and burning calories, but also helps in involution of uterus at the right time. Even cancers ke against protection like ovarian and breast cancer, यस। your bones will also become less weak, so less chances of osteoporosis. And जैसे डॉक्टर मंजरी ने पहले बताया कि it also acts as a natural contraceptive up to 6 months of delivery. And last but not the least, that it also saves money and time. So you don't have to get up again and again at night. You will feel less tired because
आप Oxytocin बेबी को hormone is released, या which helps in bonding and gives you makes you calm and relaxed while feeding the baby. So naturally, it helps as a stress buster for you. So that is why WHO, जो World Health Organization है, CDC, and there are so many organizations, especially India में जो BPNI है, Breast Feeding Promotion Network of India, and even the lactation organizations internationally are working very hard that all babies should be breastfed. And कितनी जल्दी डॉक्टर मंजरी फीड करना चाहिए बेबी को आफ्टर डिलीवरी? इमीडिएटली फर्स्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर बेबी को फीड कराना चाहिए, बिकॉज बेबी बहुत एक्टिव होता है आफ्टर डिलीवरी, और वो विदाउट एनी हेल्प या विदाउट एनी असिस्टेंस इसको ग्रिप कर लेता है और सकिंग स्टार्ट कर लेता है। प्लस इमीडिएटली आपको स्टिमुलेशंस मिल जाते हैं, जैसे बेबी सक करने लगता है, आपके नर्व जो ब्रेस्ट पे या निपल पे जो भी नर्व एंडिंग्स है वो स्टिमुलेट हो जाती है, ब्रेन को सिग्नल चला जाता है और ब्रेन से प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होने लगती है। द प्रोलैक्टिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिंथेसिस, और आपकी मिल्क जो है वो जो ग्लैंड्स है, मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, वो एक्टिवेट हो जाती हैं और मिल्क प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। इसीलिए फर्स्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी बेबी को आपको फीड कराना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मोड ऑफ डिलीवरी, चाहे आपका सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, आप इमीडिएटली बेबी को ब्रेस्ट फीड करा दीजिएगा। So many times mothers have a feeling कि अगर हम breastfeed करेंगे so it will produce changes in the size and shape of breast, and that is true also to a certain extent, but what would you say about this? Only because of this reason should they not breastfeed? नो अगर आप साइज और शेप को देखते हैं तो वो बहुत ही, हम कह सकते हैं कि पॉसिबल है, बिकॉज जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है, हार्मोन्स की वजह से आपके ब्रेस्ट में चेंजेस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट तभी से प्रिपेयर होने लगते हैं आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट मिल्क को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ऑब्वियसली उसमें चेंज आना कॉमन है आपकी साइज और शेप में। अगर आपको आफ्टर डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा ब्रेस्ट आपके इनलार्ज लग रहे हैं, वो सैगे लग रहे हैं, तो आप एक वेल फिट बरा यूज कर सकते हैं, सो दैट आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। बट साइज और शेप को देखे बिना अगर आप ब्रेस्ट मिल्क के बेनिफिट्स देखेंगे, जैसे डॉक्टर नुपुर ने हमने डिस्कस किया था कि वो मदर और बेबी दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो बेबी के हिसाब से बना है, बेबी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है। तो बेबी में बहुत सारी चीजें जो है वो मिल जाती है। अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो बेबी को वो एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उसको हाई क्लास प्रोटीन्स मिल जाती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिल जाती है, जो उसकी हर बॉडी सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। फिर आगे जाके भी आप देखते हैं कि उसमें हार्ट डिसीज के चांसेस कम हो जाते हैं, उन बेबीज में आईक्यू ज्यादा होते हैं, वो बहुत ज्यादा सोशलाइज हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स है बेबी के लिए और मदर के लिए। जैसे हमने डिस्कस किया था कि उसमें अगर वो फीड कराती है तो ऑब्वियसली उसका एक नेचुरल वेट लॉस हो जाता है, प्लस जो कैंसर के चांसेस है मदर्स में, ओवेरियन कैंसर हो गया, थायराइड कैंसर हो गया, वो कम हो जाते हैं आफ्टर मेनोपॉज जो है। तो ट्रेमेंडसली बेनिफिशियल, प्लस कॉस्ट भी सेविंग करता है, तो आपका जो है वो इकोनॉमिकली आपको वो बहुत बेनिफिशियल है, और कभी भी कैसे भी जहां आप चाहो बेबी को इजीली फीड करा सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप साइज और शेप को देखेंगे तो ऑब्वियस है उसका चेंज होना, और वो जरूरी भी है, क्योंकि वो मिल्क डक्ट्स को प्रोलिफरेट करने लगता है और मेमरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, सो दैट आपका मिल्क प्रोडक्शन बन जाए और जो बेबी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर दो। सो वेरी राइटली सेड डॉक्टर मंजरी, क्योंकि ये चेंजेस तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम ओनली द ब्रेस्ट में साइज शेप में चेंजेस आने लग जाते हैं, सेंसिटिविटी चेंज हो जाती है, क्योंकि मिल्क का डेवलपमेंट या मिल्क डक्ट का डेवलपमेंट तो पहले से ही हो रहा है। ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू फीड आफ्टर डिलीवरी, बट लॉट ऑफ चेंजेस हैपन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चेंजिंग हॉर्मोन्स, जो कि है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्ट्रॉन। हाँ, which is a physiological thing. And because blood flow also increases, the milk ducts also expand. और जब ब्रेस्ट टिश्यू एक्सपैंड करता है तो ब्रेस्ट टिश्यू का जो सपोर्ट है दैट इज कूपर्स लिगामेंट, तो कूपर्स यस लिगामेंट भी स्ट्रेच हो जाते हैं टू अकोमोडेट द ग्रोथ ऑफ योर ब्रेस्ट, और यस इसीलिए साइज चेंज होना इज नॉट एबनॉर्मल। इवन साइज ऑफ द निपल्स एंड द सराउंडिंग एरियोला वो भी will चेंज हो will जाता not है। be similar, and during lactation the size might be much more, but you don't need to worry about all these things because lot of it will settle down
partly the fat will also reduce when you stop breastfeeding, and mammary Yes, glands will also shrink back, making it yes, smaller, and you will not be the same later on as well. यस। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करेंगे तो अपने आप उसका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर आप साइज और शेप का ज़्यादा चिंता ना करेंगे और ब्रेस्ट फीडिंग की ध्यान देंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा आपके और बेबी के लिए। बहुत बार और डॉक्टर इनफैक्ट मंजरी, वो हाँ, ऐसा होता है कि मदर्स और बेबी को अलग सुलाया जाता है बिकॉज मदर इज नॉट एबल टू टेक रेस्ट आफ्टर डिलीवरी। सो शुड दिस बी डन कि मदर की नींद पूरी हो जाए और दे आर एबल टू स्लीप बेटर, सो दे शुड स्लीप अपार्ट। द फैक्ट इज दैट बेबी और मदर दोनों एक ही रूम में होने चाहिए। उसमें भी को स्लीपिंग या बेड शेयरिंग हम कह सकते हैं, बट अगर आप रूमिंग है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके कॉट के साथ अगर बेबी का कॉट अटैच है तो आप कभी भी जैसे ही बेबी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बेबी को फीड करा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप बेबी के साथ में हैं तो आप दोनों का जो वेकिंग साइकिल है, असली स्लीप साइकिल है, वो कोऑर्डिनेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही बेबी फीडिंग के लिए उठने लगता है आपकी भी नींद खुलना शुरू हो जाती है। आपको ब्रेस्ट में वो चेंजेस दिखना शुरू हो जाते हैं कि बेबी को फीड कराना है। तो जैसे ही बेबी प्रॉपर नींद से जग जाता है आप इमीडिएटली बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। और जो उसके अर्ली हंगर क्यूज है जिसमें हम बोलते हैं कि बेबी को फीड कराना चाहिए, क्योंकि क्राई इज द लेट हंगर क्यू। तो क्राई करते वक्त अगर आप देखोगे तो क्राई के बाद फिर बेबी को शांत करना, फिर उसको ब्रेस्ट पे लेना, उसकी पोजीशन देना, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर आप अर्ली फीडिंग क्यूज में कर रहे हैं तो जो है कि बेबी इस तरह से मूव करने लगता है, मुठियां सब करने लगता है, पलकने झपकने लगता है, तो ये अर्ली फीडिंग क्यूज में आप करते हैं तो ये दोनों के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा मैनेज करना। दूसरा, जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगी आपकी बॉडी से जब आप बेबी को फीड कराते हैं, तो जब मिल्क आता है तो उसको हम लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलते हैं। उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो जाती है, वो नेचुरली आपको रिलैक्स कर देती है, बोथ मदर एंड बेबी को। तो आपको वो एक रिलैक्सेशन भी आ जाता है और एक एंजॉय कर सकते हैं, बॉन्डिंग भी बढ़ेगी आपकी। तो इसीलिए बेबी का आपके साथ होना बहुत जरूरी है, ना कि सेपरेट होना। सेपरेट के बाद बेबी को भी एक एंजाइटी डिसऑर्डर आने लगती है, तो उसकी वजह से बेबी क्रैंकी होने लगता है, फसी होने लगता है। तो ये सब करने से अच्छा है कि आप बेबी को आपके साथ में रखेंगे तो दोनों के लिए वो एक स्ट्रेस बस्टर का काम करेगा, तो आप हाँ, दोनों वो और बॉन्डिंग स्पेशली एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, और स्पेशली जब बेबीज आर प्री टर्म या प्री प्री मेच्योर, टर्म उनमें तो तब बहुत हम ज्यादा बहुत जरूरी प्रमोट है, करते हैं कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट इज वेरी कांटेक्ट एसेंशियल, बहुत जरूरी है। which यस। is also called kangaroo mother care या kangaroo mother care, and all your health professionals, चाहे वो midwife हो, चाहे वो nurse हो, चाहे वो आपका डॉक्टर हो या आपके pediatrician हो, they will all promote kangaroo mother care, जिससे which is a standard practice, और उसके बहुत से benefits हैं, and it has long been proven that it creates a very special bond between mother and baby. बेबी। और कई बार स्किन टू स्किन कांटेक्ट हम इमीडिएटली आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी भी देते हैं, एंड वी मेक द मदर होल्ड द बेबी, सो दैट it helps in many ways. Number one, to stabilize the baby's heartbeat, to stabilize the breathing pattern. It becomes more regular immediately after delivery. कभी कभी ऑक्सीजन saturation भी improve होता है. They sleep well, their weight gain is proper. Such babies have also been found to cry less, and uh, जो प्री दे टर्म्स बिकम हैं, काम एंड हाँ, कंफर्टेबल। अवेलेबल, एंड जो प्री टर्म बेबीज हैं दे रिकवर फास्टर, एंड समटाइम्स यस, इट हैज बीन सीन कि इनका हॉस्पिटल डिस्चार्ज भी जल्दी हो कम जाता जल्दी हो जाता है और हॉस्पिटल है, स्टे भी कम हो जाता है, फिर आपका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के चांसेस भी बढ़ते हैं बनता अगर है, आप बेबी हाँ। के साथ में हैं। सो वेरी तो ये राइटली बहुत सेड, या जरूरी है। सो मदर के लिए भी इम्पोर्टेंट है दैट ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन improves if baby is with the mother all the time and they feel close to each other. Mother is more यस, confident in feeding the baby and also has a sense of control, so it is not good to separate both mother and baby. बेबी। So last question, Dr. Manjri, that many a times we feel that बार बार feed करने से milk production कम होने लगता है. So how true is this? द फैक्ट इज दैट द मोर यू फीड द मोर यू मिल्क यू विल मेक। आप जितनी बार बेबी को फीड कराएंगे उतनी बार बेबी स्टिमुलेशन देगा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्योंकि उतनी बार वो प्रोलैक्टिन सीक्रेट होगी, मिल्क सिंथेसिस होगा और आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो अगर आप सोचते हैं कि अगर आप बार बार फीड करेंगे तो मिल्क आपका कम हो जाएगा,
ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ज़्यादा बार बार बेबी को फीड करा रहे हैं तो आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा और बेबी की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल करने के लिए ईजी हो जाएगा। सो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर बाबा बेबी फीड कर रहा है तो आपका मिल्क प्रोडक्शन कम नहीं होगा, उल्टा वो बढ़ेगा। तो फ्रिक्वेंट फीड की ज़रूरत होती है। अगेन बेबी का जो ब्रेस्ट मिल्क बेबी लेता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो बेबी को फ्रिक्वेंट फीड की ज़रूरत पड़ती है। तो एवरी 2 to 3 आवर में बेबी को आप फीड करा सकते हैं। इनफैक्ट वो खुद ही उठ जाता है। अगर आपका एक साइकिल सेट हो जाता है तो एवरी 2 to 3 आवर में बेबी फीडिंग के लिए उठ जाता है। तो वो अपने हिसाब से, अपनी डिमांड के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब करेगा और काम एंड कंफर्टेबल हो जाएगा। Thank you, Dr. Manjri. So it is a well-established fact that when we are mentally prepared to breastfeed baby after delivery, it should be as early as possible or within 1 hour of birth. Uh, in normal delivery, maybe much earlier. After cesarean, it can be as early as mother feels good. And over a period of time, Dr. Manjri, the recommendation is I think 10 to 12 feeds per day. या अगर Yes, हम कैलकुलेट करें तो एटलीस्ट 2000 फीड्स इन अ रोलिंग पीरियड ऑफ 6 months, which will make yes, both of them as comfortable to each other. And agar if this happens for a period of 6 months, it has been found that it will reduce the incidence related to breast cancer deaths. Almost 20,000 are preventable and almost 8 lakh childhood deaths जो है वो भी रोकी जा सकती हैं over a period of 1 year. So we can imagine how beneficial it is for mother also and for to improve the big, childhood mortality as well. And yes, morbidity to hai that you are getting protected against so many things. So almost all the governments are promoting the same, whether mother is feeling not well, then also we promote, चाहे डॉक्टर मंजरी HIV इन्फेक्शन हो, चाहे फ्लू इन्फेक्शन हो, चाहे डेंगू हो, अनलेस बेबी इज प्रीटर्म और नीड्स अ नियोनेटल ICU केयर, तब भी मदर को नर्सरी में बुलाया जाता है और बेबी के साथ बॉन्डिंग कराई जाती है, because mother's touch helps them recover much faster. So much Dr. faster, yes. Manjri, for this I think as a lactation consultant, we need to prepare mothers during pregnancy only, so that the Itself, yes, breastfeeding is well established. And for well this, established. Dr. Manjri takes antenatal classes for breastfeeding not only before delivery, which is very important, but even after delivery. If any one of you face such problems or need help, she will always be there to guide you. And you are most welcome to connect with her regarding this. So we have Kavita and Madhu Jain who have also joined us in the live session. Hello Madhu, hello Kavita. And with this, I think we can end. Dr. Manjri, so one last tip or take home message which you would like to give to all mothers. अगर टेक अवे मैसेज में यही दूंगी कि अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा, आप जान लीजिए ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, बेबी की लैच कैसे होनी चाहिए और बेबी कितना फीड करता है, कितनी अवरली फीड करनी चाहिए, तो ये आप सारा चीज़ समझ लोगे तो आपको आफ्टर डिलीवरी इमीडिएटली वो बेनिफिशियल रहेगा। और आपकी जो हेल्प चाहिए आपको वो आप इमीडिएटली ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पे जा रहा है और आपको क्या हेल्प की ज़रूरत है, तो जितनी जल्दी आप अपनी हेल्प को ले लेंगे उतनी जल्दी आपको एक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एस्टैब्लिश करने में बेनिफिशियल हो जाएगा। सो मैं चाहूँगी कि आप पहले इन्फॉर्मेशन ले लें, समझ लीजिए और फिर जितनी जल्दी आप हो सकता है आफ्टर डिलीवरी लैच को करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इनकरेक्ट लैच इज द मेजर प्रॉब्लम फॉर ब्रेस्ट फेल्यूर। अगर आप पहले ही उसको समझ लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी है वो बहुत स्मूथ एंड कंफर्टेबल हो जाएगा। सो लैच So, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बेबी का लैच जो है वो हमेशा एरियोला पे होना चाहिए, ना कि निपल पे, क्योंकि जब तक वो एरियोला पे नहीं आएगा वो मिल्क डक्ट को कॉम्प्रेस नहीं करेगा और मिल्क रिलीज नहीं हो पाएगा। और अगर आपका निपल पे है तो इंजुरीज बढ़ेगी और फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो लैच बहुत ज़रूरी है। प्लस आप समझ लीजिए कि फर्स्ट 24 आवर बेबी का स्टमक साइज बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए वो
छोटा ही मिल्क एकोमोडेट करता है, तो जो भी ड्रॉप आपका मिल्क आता है दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट फॉर द बेबी। फिर आफ्टर 24 आवर उसका स्टमक साइज बढ़ेगा, फिर आपका मिल्क भी बढ़ेगा, तो धीरे धीरे आपका मिल्क सिक्रेशंस बढ़ेगी, धीरे धीरे स्टमक साइज बढ़ेगा। और अगर ये सारी चीजें आप जान लेते हैं तो बहुत ही आप दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा आपकी ब्रेस्ट फीडिंग को एक स्मूथ जर्नी में एस्टेब्लिश करने के लिए। So thank you so much, Dr. Manjari, for your time today, and wishing everyone a very happy Christmas as well as New Year. Thank you. Happy Christmas to you all and happy New Year.